اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں اپنی عبادت کے لیے توفیق عطا فرمائی۔ وگرنہ ہم معاشرے میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں، کتنے رمضان ان کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، انہیں عبادت کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ وہ رجوع اللہ رمضان کے علاوہ تو کرتے ہی نہیں ہیں، رمضان کے اندر بھی انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی گھر۔ عزیزان گرامی قدر احباب، رمضان المبارک کا مہینہ تقریباً ہمیں الوداع کہہ رہا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے تھے، جب ہم انتظار میں تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان آ رہا ہے۔ اس مہمان کے استقبال کے لیے ہم تیاریاں کر رہے تھے۔ ہم نے اس مہمان کا استقبال کس طرح کیا، کما حق ہو ہم نے اس مہمان کا استقبال کیا یا نہیں کیا، ہر شخص بخوبی جانتا ہے اس چیز۔ اور رمضان المبارک کا استقبال کیا تھا؟ رمضان المبارک کا استقبال قال اللہ و قال الرسول کی پیروی تھی۔ رمضان المبارک کا استقبال رمضان المبارک کے اندر عبادات زیادہ سے زیادہ کرنا تھا۔ رمضان المبارک کا استقبال یہ تھا کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں۔ رمضان المبارک کے استقبال کا تقاضا یہ تھا کہ ہم خود بھی اچھے کام کریں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کی تلقین کریں۔ یہ رمضان المبارک کے استقبال کا تقاضا تھا میرے۔ پھر رمضان المبارک کا پہلا عشرہ آیا، جسے عشرہ رحمت کہتے ہیں۔ عشرہ رحمت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول کیا ہمارے اوپر، اور ہم میں سے وہ بھی بدقسمت تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان رحمتوں کو بھی حاصل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے جو اسباب تھے حصول کے، ان اسباب کو اختیار ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک پیکج دیا تھا، ایک آفر لگائی تھی، ہم اس آفر تک گئے ہی نہیں ہیں، تو ہم رحمتیں کیسے حاصل کریں گے؟ مارکیٹ کے اندر جب بولی لگتی ہے، مارکیٹ کے اندر جب سیل لگتی ہے، کوئی شخص گھر بیٹھے اس سیل کو نہیں حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے اسے جانا پڑتا ہے اس مال کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر ایک سیل لگا دی تھی میرے بھائی، اور اس سیل کے لیے ہمیں کیا کرنا تھا؟ ہمیں وہ اسباب اختیار کرنے تھے جن اسباب کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا حصول کر لیں۔ وہ عشرہ بھی گزر گیا میرے بھائی۔ دوسرا عشرہ آ گیا، عشرہ مغفرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے پناہ بخششیں اپنے بندوں کے لیے بچھا دی میرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش کے لیے بہانے ڈھونڈتا رہا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کتنے گئے، ہر بندہ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ ہم نے عشرہ مغفرت کو کیسے گزارا، یہ ہر بندہ اپنے آپ کو ججمنٹ کر سکتا ہے کہ میں نے کتنی استغفار کی ہے اس عشرے کے اندر کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت کر دیتا۔ میں نے کتنی عبادات کی ہیں، میں نے کتنے نوافل پڑھے ہیں جن کا ثواب مجھے فرائض کے برابر میں۔ بلکہ اگر ہم سرسری نظر دوڑائیں تو ہم میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے 5 وقت جماعت کی بھی پابندی نہیں کی ہے۔ 5 وقت جماعت جو عام دنوں میں بھی فضیلت رکھتی ہے، جو فرض ہے میرے بھائیوں، جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو اٹل ہے، ہم نے اس کے اندر بھی کوتاہیاں کی ہیں۔ زائد عبادات کرنا تو دور کی بات ہے، 5 وقت با جماعت نماز کو بھی ہم نے ترجیح نہیں دی ہے میرے بھائی۔ اور اب وہ وقت آ چکا ہے، ہم نے جو رویہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان کے ساتھ، ہم نے جو اس کا استقبال کیا، اب وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اب الوداعی گھڑیاں آ چکی ہیں رمضان المبارک کی میرے بھائی، اور یہ جمعۃ الوداع ہے۔ جمعۃ الوداع یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے کہ شریعت کے اندر اس کی کوئی خاص فضیلت ہے۔ جمعۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں اسے کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے، الوداعی جمعہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنی فضیلت ہے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے،
मुबारक अय्याम चल रहे हैं। फिर सैयदुल अय्याम जुमा है, उसकी फजीलतें हैं, उस एतबार से फजीलतें, इसके अलावा खास कोई फजीलतें इसकी नहीं है मेरे भाई। तो ये रमजानुल मुबारक के अंदर ये जुम्मा हमें पैगाम दे रहा है कि मैं जा रहा हूं, मेरे बाद रमजानुल मुबारक खत्म हो जाए। क्या पता जिंदगी के अंदर हमें दोबारा रमजानुल मुबारक नसीब होगा या नहीं होगा। क्या पता अल्लाह तबारक व तआला ने जो रहमतों के नुज़ूल के लिए हमारे लिए जो असबाब पैदा किए थे मेरे भाइयों, वो हम दोबारा हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किसी को कोई पता नहीं है मेरे भाई। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपनी रहमतों की फरावानियां की थी, उन रहमतों की फरावानियों को हमने हासिल किया है या नहीं किया है मेरे भाइयों। क्या पता हम दूसरे रमजानुल मुबारक को पा सकते हैं या नहीं पा सकते। लेकिन अभी भी हमारे पास वक्त है, अभी भी हमारे पास वक्त है। वो अल्लाह अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है, वो जात अभी भी हमारी ताक में बैठी हुई है कि मेरा बंदा अभी आएगा मेरे पास। पूरा रमजानुल मुबारक उसने गफलत से गुजार दिया है, कोई बात नहीं है, अभी भी मेरे पास आ जाए, मैं माफ कर दूं। अभी भी मेरे पास आकर अपने गुनाह की माफी मांग ले, मैं उसे माफ कर दूंगा, ऐसा माफ कर दूंगा, ऐसे माफ कर दूंगा गोया कि वो अभी मां के पेट से पैदा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला माफ करने वाली जात है। सुस्ती हमारे अंदर है कि हम उसके दर पर नहीं जाते, सुस्ती हमारे अंदर है कि हम उसके सामने सजदा रेज नहीं होते हैं मेरे भाई। सुस्ती हमारे अंदर है कि हम इस्तिग़फ़ार नहीं करते हैं, फिर भी हम पुरुम्मीद हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें आएंगी। मेरे भाइयों, असबाब इख्तियार करने पड़ेंगे। अभी भी हमारे पास चंद दिन बाकी है मेरे भाइयों। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, इबादत करें मेरे, ज्यादा से ज्यादा। रमजानुल मुबारक जाते जाते हमें यह पैगाम दे रहा है मेरे भाइयों कि हमने जिस तरह रमजानुल मुबारक के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा मस्जिदों की तरफ आते हैं, मस्जिदों की तरफ, इबादत की तरफ ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों का हुजूम होता है, रमजानुल मुबारक के अलावा भी होना चाहिए। रमजानुल मुबारक के अलावा भी वही अल्लाह है, रमजानुल मुबारक के अलावा भी वही नमाजें होती हैं, रमजानुल मुबारक के अलावा भी वही मुसलमान होता है मेरे भाइयों। लेकिन जरूरत समर की है कि हम जो मशक हम रमजानुल मुबारक के अंदर कर रहे हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुरत्तब निजाम के जरिए हमारी मशक कराई है, हमारी जिस्मानी, बदनी, रूहानी, हर तरह की जो हमारी मशक कराई है, इस मशक को हम आगे भी जारी रखें मेरे, ये अमाल हम आगे भी जारी रखें मेरे भाई। हर इंसान चाहता है कि मैं जिंदगी में कामयाब हो जाऊं, हर शख्स चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहां मेरा मकाम बन जाए, हर शख्स चाहता है कि मैं लोगों की नजर में भी अच्छा बन जाऊं, लोग भी मुझे अच्छा कहें। उसके लिए मेरे भाइयों हमें हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की पाबंदी करनी होगी, हमें हुकूकुल्लाह को भी अदा करना होगा और हुकूकुल इबाद की भी पाबंदी करनी होगी मेरे भाई। आप थोड़ा अंदाजा लगाएं, शरीयत के अंदर 25% इबादत है, रोजा, ज़कात, हज, नमाज, ये जितनी भी इबादत है मेरे भाइयों, ये सिर्फ 25% है। 75% मामलात है मेरे भाइयों इस दीन के अंदर, 75% मामलात। एक शख्स अगर ये समझता है कि मैं नमाज पढ़ लूंगा, बाकी मैं चोरी करता रहूं, जिना करता रहूं, बंदों के हुकूक तलफ करता रहूं, अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देंगे, हरगिज़ ऐसा नहीं है मेरे भाई। एक मुसलमान अगर 25% इबादत के ऊपर तवज्जो दे रहा है, उसे इस आलमगीर इस्लाम की बदौलत उसे 75% जो बाकी मामलात हैं उनको भी देखना है। उसने अपने वालिदैन का हुकूक भी अदा करने हैं, उसने अपनी बीवी के हुकूक भी अदा करने हैं, उसने मुआशरे के हुकूक भी अदा करने हैं, उसने पड़ोसी के हुकूक भी अदा करने हैं मेरे भाई। तब जाकर वो मुसलमान, वो इंसान हकीकी तौर पर कामयाब हो जाए। अदरवाइज कुछ पता नहीं है मेरे भाइयों, खतरा ही खतरा है इंसान के लिए। ये दुनिया खत्म होने वाली है मेरे भाई। इससे कितने बड़े बड़े आए, ठाट बाट के साथ आए, वो चले गए। कितने तो ऐसे थे कि उन्होंने अपने लिए असबाब भी अख्तियार किए कि हम नहीं मरेंगे, लेकिन उनको ऐसी जगह से मौत ने हिट किया कि उनको पता भी नहीं चला। मेरे शद्दाद का किस्सा कितनी दफा मैं आपके सामने जिक्र कर चुका हूं। दुनिया के अंदर जन्नत बना रखी थी मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने कदम भी अंदर नहीं रखने दिया है। अपनी ही बनाई हुई जन्नत से फायदा हासिल नहीं कर सका शद्दाद, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी रूह कब्ज कर। क्या पता इस रमजानुल मुबारक में हम में से कोई है,
अगले रमजान मुबारक में ना हो। क्या पता इस रमजान मुबारक के अंदर हमें जो अल्लाह तबारक व तआला मोहलत दे रहा है यह हमारी आखिरी मोहलत हो, इसके बाद हमारे लिए कोई मोहलत बाकी ना रहे। किसी को कोई यकीन नहीं है मेरे भाई, अपने मामलात दुरुस्त करने की जरूरत है मेरे भाई, अपने इबादात दुरुस्त करने की जरूरत है मेरे भाई। खतीब बगदादी तारीख बगदाद के अंदर लिखते हैं, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह का दौर है, वक्त के बादशाह हैं। बीवी कहती हैं कि ईद का मौका आ चुका है, बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, इंतजाम कीजिए कुछ पैसों का। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह, कौन उमर बिन अब्दुल अजीज, जो 3 बरियाज़मों के बादशाह कहलाते थे मेरे, एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बादशाह उमर बिन अब्दुल अजीज, और कह रहे हैं कि तनख्वाह खत्म हो चुकी है। बीवी ने कहा, आलिया ने कहा कि जाकर बैतुलमाल से एडवांस तनख्वाह ले। जब बैतुलमाल वाले के पास जाते हैं, बैतुलमाल का कीपर कहता है कि मैं तो आपको 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दूं, आप मुझे क्या गारंटी देते हैं 1 महीने तक आप जिंदा रहेंगे? क्या गारंटी आप मुझे देते हैं कि 1 महीने तक आप जिंदा रहेंगे? उमर बिन अब्दुल अजीज रहमुल्लाह वहीं पर सर झुकाते हैं, आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं, कहते हैं तू 1 महीने की बात करता है, मैं तो 1 दिन की भी मोहलत, मैं तो 1 दिन की भी गारंटी नहीं दे सकता हूं। आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब साहबा ने तज़किरा किया कि 4 रकात, क्या पता हमें 4 रकात हम पढ़ें, सलाम फेरें, उसके बाद हम जिंदा होंगे या नहीं होंगे, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 रकात तो बहुत बड़ी चीज है, मैं एक जानिब सलाम फेरता हूं, क्या पता दूसरी जानिब सलाम फेर सकूंगा या नहीं फेर सकूंगा, और मेरी जिंदगी की शाम हो जाए। मेरे भाइयों, ये मौत आने वाली, इसने बड़े बड़ों को ललकारा है, इसके सामने कोई नहीं टिक सकता है। असल जिंदगी हमारी जो है, हमेशा हमेशा वाली जो जिंदगी है हमारी, वो उखरवी जिंदगी है। ये दुनिया की जिंदगी जो है ये हमारे लिए एक खाक है मेरे भाई, ये तो मच्छर का पर है, उससे भी बदतर है मेरे भाई। हमने आज इसको अपने दिलों में बिठाया हुआ है, आज हम इसके पीछे भाग रहे हैं, इसके मुताबिक हम अपने फैसले कर रहे हैं मेरे भाइयों। चाहे अगर हमने दीन को दांव पर लगाना हो फिर भी हम लगा देते हैं, दुनिया हासिल कर लेते हैं। क्या हासिल इस दुनिया की? आज हम हुकूकुल इबाद पे इतना पामाल कर रहे हैं मेरे भाइयों, इतना पामाल कर रहे हैं। इमाम ज़हबी रहमुल्लाह ने अपनी किताब अल कबायर के अंदर लिखा है, एक शख्स ख्वाब के अंदर देखा एक शख्स को अजाब हो रहा है, पूछा गया किस वजह से अजाब दिया जा रहा है? कहने लगा कि मैंने दुनिया में एक शख्स से सुई ली थी कपड़े सिलाई करने के लिए, कपड़े सिलाई किए मैंने, लेकिन उस शख्स को वापस दे ना सका, मेरी मौत वाक़ई हो गई, तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे अजाब दे। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वाली जात है, वो अगर इंसाफ पर आए तो छोटे छोटे का हिसाब भी ले सकती है, बड़े से बड़ी चीज का भी हिसाब ले सकती है, लेकिन वो गफूर और रहीम जात है, वो हमें मोहलत दे रही है, वो हमें दरगुजर कर देती। नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, ए प्यारे पैगंबर खबर दे दीजिए मेरे बंदों को, अन्नी अनल गफूर रहीम, मैं तो गफूर रहीम, व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, साथ साथ मेरे बंदों को डरा भी दीजिए कि मेरा अजाब बड़ा सख्त है, बड़ा दर्दनाक अजाब है। अगर मैं किसी को छूट दे रहा हूं तो वो ये ना भूल जाए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख नहीं रहा। इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद, तेरा रब तो हर वक्त घात में बैठा हुआ है, उसकी नजर है तेरे ऊपर, और ऐसी नजर है जो कभी न खत्म होने वाली नजर है मेरे भाई। नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, मेरा अजाब बड़ा सख्त है। तो आज जरूरत इस चीज की है मेरे भाइयों कि हम रमजानुल मुबारक के जो बकिया अय्याम हैं मेरे भाइयों, इनके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, ज्यादा से ज्यादा तिलावत कलाम पाक करें। अगर किसी से नमाजें छूटी हुई हैं वो नमाजें अदा करें मेरे भाई, जिक्र व अज़कार करें मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के सामने गड़गड़ाएं, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने मसाइल रखें मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपना कनेक्शन जोड़े। जो हमारा 11 महीने कनेक्शन अल्लाह तबारक व तआला से टूटा होता है, अभी जरूरत है कि रमजान मुबारक के अंदर हम अल्लाह से वो कनेक्शन जोड़ लें, और ऐसा कनेक्शन जोड़े मेरे भाइयों, ऐसा कनेक्शन जोड़े कि कभी भी मरते दम तक वो कनेक्शन ना टूटे अल्लाह तबारक व तआला के साथ।
ऐसा राब्ता हम जोड़ लें। और जब अल्लाह तबारक व तआला के साथ राब्ता जुड़ जाता है मेरे भाइयों, तो फिर दुनिया की जिंदगी भी सुकून से गुजरती है, आखिरत की जिंदगी भी सुकून से गुजरती है। और जिसकी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला नहीं है, दुनिया जहान की सारी चीजें हो जाए, तमाम टेक्नोलॉजी भी उसके पास आ जाए, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। क्यों? तमाम मखलूकात का मालिक उसके पास नहीं है। जिसने तमाम मखलूकात के मालिक को पा लिया है, उसने सब कुछ पा लिया है। जिसने अल्लाह तबारक व तआला को न पाया, उसने कुछ भी नहीं पाया। सब कुछ पाकर भी वो खाली है मेरे भाई, सब कुछ पाकर भी वो खाली। तो मेरे भाइयों, हमें मुड़ने की जरूरत है। जहां जहां तक हम चले गए वहीं पर रुक जाना चाहिए। अगर हमसे गुनाह हुए हैं मेरे भाइयों, होता है, इंसान है, काफी गुनाह होते हैं इंसान से। जिना भी होता है, चोरियां भी होती हैं, डकैतियां भी होती हैं, हुकूक भी खाता है इंसान, कत्ल भी करता है। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला गफूरुर रहीम। आज हम अगर तौबा करेंगे, इसी मजलिस के अंदर तौबा करेंगे, वो फौरन कबूल कर देगा मेरे भाई। लेकिन सच्ची तौबा करें, हम आजम के साथ तौबा करें कि या अल्लाह जो गुनाह मुझसे हुआ है इसके ऊपर मैं शर्मिंदा, या अल्लाह जो गुनाह मुझसे हुआ है मैं मुकम्मल तौर पर पुरअज़म हूं उसको छोड़ने के लिए। और उस पर फख्र भी ना करे, वो बाद में उसके ऊपर फख्र भी ना करे, पुरअज़म हो जाए कि आज के बाद मैंने गुनाह नहीं करना, आज के बाद मैंने अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है मेरे भाई। सही दीन के ऊपर चले मेरे भाई। और ये इधर उधर के जो खुराफात होते हैं, इनसे बचे, अपने आप को बचाए। ये जो जुम्मतुल विदा के अंदर एक बात मशहूर कर दी जाती है, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर धड़ंगे से शेयर हो रही होती है, क़ज़ाए उम्री जी, इस जुमे के दिन फलां इतनी रकात पढ़ो, इतना कुछ पढ़ो अंदर तो सारी उम्र की नमाजें माफ हो जाती। ये सारी मनगढ़ंत चीजें हैं मेरे, ये वहमियात हैं, ये खुराफात हैं। और बदकिस्मती ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर खुराफात बहुत जल्दी फैल जाते हैं, बहुत जल्दी प्रोमोट हो जाते हैं खुराफात। याद रखें मेरे भाइयों, अगर कोई शख्स किसी गलत चीज को शेयर करता है, जब तक वो मौजूद रहती है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसे गुनाह मिलता रहता है, चाहे वो मर जाए। ये तो इंसान अपने लिए एक बुराइयों का अकाउंट खोल के जा रहा है इस दुनिया से मेरे भाई। कोशिश करें कि गलत चीज को आगे शेयर न करें, तहकीक करके उलमा इकराम से तहकीक करें, फिर आगे उसको शेयर करें। अगर किसी से नमाजें कज़ा हुई हैं, उसे पढ़नी पड़ेंगी, हर नमाज तरतीब बनाकर इंसान पढ़े उसे। यह नहीं है कि 4 रकात नमाज पढ़ ली पूरी उम्र की नमाजें माफ हो, ऐसा हरगिज नहीं है मेरे भाई। ये हमारे वहम है। आज तो हम कुरान को भी अपने वहम के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज हमने कुरान मंतरों के लिए रखा हुआ है। एक जुम्मे में मैं बाहर बैठा हुआ था, एक शख्स आया मेरे पास और जेब से एक बाल निकाला। कहता है मैं सोया हुआ था, ये बाल मुझे मिला है, मैं क्या करूं? मैंने कहा फेंक दो इसको। कहता है हर दिन मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जब सोकर उठता हूं नीचे से बाल निकलता है। तो मैंने कहा बार बार फेंक दिया करो, इसमें क्या हर्ज है? ये तो कोई, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है कि इंसान सोचे कि पता नहीं क्यों बाल निकल रहा है मेरा। ऐसी चीजों में हम पड़े हुए मेरे। ये कुरान जो है हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए आया। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, ए रसूल जो तेरी तरफ नाजिल किया गया इसे आगे लोगों तक पहुंचाओ। ये तो हमारे लिए रहनुमा है, ये हमारे लिए दस्तूर है, इसके मुताबिक हमने जिंदगी गुजारनी है। यह हमें हुकूक बताता है, यह हमें इबादत बताता है मेरे भाई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मकसद के लिए नाजिल किया, हमने इसको इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना। खुराफात को हमने छोड़ना है मेरे। तो रमजानुल मुबारक की आखिरी घड़ियां चल रही हैं मेरे, और आखिरी जो 10 आखिरी अशरा होता है, इसके अंदर जो ताक रातें होती हैं, उन ताक रातों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर नेमत के हमें एक रात अता की है, बड़ी फजीलतों वाली रात है मेरे भाई। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया है लैलतुल क़द्र का। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुझे क्या खबर कि लैलतुल क़द्र क्या है? ये अदरा का युदरी का ऐसे अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला कुरान में जा बजा इस्तेमाल करते हैं इंसान की तवज्जो दिलाने के लिए। तुझे क्या खबर लैलतुल क़द्र क्या है? इमाम फखरुद्दीन राजी रहमुल्लाह तफसीर कबीर के अंदर क़द्र के कुछ मानी करते हैं, फरमाते हैं
قدر کا معنی ہے قدر تقدیر سے نکلا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لیلۃ القدر سے لے کر دوسری لیلۃ القدر تک جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں تقدیر کے، وہ ایک انسان کے بارے میں کر دیتے ہیں۔ اس بات کو ہم نے شب برات کے اندر لے کر گئے ہیں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شب برات کے اندر یہ فضیلت نہیں ہے، وہ جو بیان کی جاتی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، یہ تمام یہ جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں یہ شب برات کے اندر نہیں ہوتے ہیں، یہ شب قدر کے اندر ہوتے ہیں، کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی ایک انسان کے پورے سال کا دورانیہ ہوتا ہے، اس کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کے رجسٹر فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اور ایک معنی کرتے ہیں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ، قدر کا معنی ہے تنگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں زمین و آسمان میں اتنے فرشتے اتارتا ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی اترتے ہیں، جبرائیل امین بھی اترتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آسمانوں میں فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اگر کوئی قیام کی حالت میں کھڑا ہے تو وہ کھڑا ہی رہے گا قیامت تک، اگر کوئی رکوع کی حالت میں ہے تو وہ رکوع ہی کرتا رہے گا قیامت تک، اگر کوئی سجدے کی حالت میں ہے تو وہ سجدہ ہی کرتا رہے گا قیامت تک۔ لیکن لیلۃ القدر وہ واحد رات ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ دنیا زمین کی طرف اتر جاؤ۔ فرشتے اترتے ہیں مسلمانوں کو پروٹوکول دینے کے لیے میرے بھائی، کہ مسلمان اس رات کے اندر عبادت کریں گے، اور مسلمان اس رات کے اندر غفلت میں پڑا ہوتا ہے، مسلمان کے ہاتھ میں اس رات میں موبائل ہوتا ہے، مسلمان اس رات میں بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے، مسلمان اس رات کے اندر بازاروں میں آنکھ مچولیاں کر رہا ہوتا ہے، فرشتے ان کے پروٹوکول کے لیے زمین پر اترے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ناقدری نہیں ہے میرے بھائیوں، کتنی بڑی امت، کتنی بہترین امت ہے امت محمدیہ میرے بھائیوں، اور ہمیں اپنی قدر ہی نہیں معلوم ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے خصائص الکبریٰ کے اندر ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری تو تورات کھول کر تلاوت کی، انہوں نے تلاوت کرنے کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں تلاوت کر رہا تھا، میں نے تلاوت کے اندر دیکھا کہ ایک ایسی امت کا ذکر آیا جو الآخرون السابقون، جو دنیا میں سب سے آخر میں آئیں گے، لیکن السابقون جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں۔ یا اللہ یہ امت مجھے عطا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ یا اللہ وہ امت جو سب سے آخر میں آئے گی، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، وہ امت مجھے عطا کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، اے کلیم اللہ، یہ امت میرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ میرے بھائیو، کنتم خیر امت، بہترین امت ہو، ہمیں نبیوں والا فریضہ عطا کیا گیا ہے، تبلیغ کا سلسلہ ہمارے اندر جاری کیا گیا ہے میرے بھائی، ہم نے محدود نہیں رہنا ہے، دین خود سیکھنا ہے، آگے دوسروں تک پہنچانا ہے میرے بھائی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح تک، طلوع فجر تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو رہی ہے۔ اس رات کے اندر میرے بھائیو عبادت کرو، اس رات کے اندر اپنے فیصلے کراؤ، اس رات کو غنیمت سمجھو، اس رات کو اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھ کر عبادت کرو۔ کیا پتا آپ کا کوئی ایسا کام جو رکا ہوا ہے وہ اس رات کے اندر عبادت کرنے کی وجہ سے کھل جائے، کیا پتا آپ کی کوئی خواہش جو آپ پوری زندگی اس خواہش کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس رات میں مانگ کر دیکھیں، کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے۔ میرے بھائیوں، مانگ کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گفت و شنید ہو کر دیکھیں، ہم کلام ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی محبت کرتا ہے۔ ایک ماں ہے، ایک ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنے بچے کے ساتھ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تیرے کریم رب سے تجھے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہوا، کس چیز کے تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ تو اس کے در پر نہیں آتا ہے، تو اس سے مانگتا نہیں ہے، اس کے حکموں کی بجاوری نہیں کرتا ہے، سراسر تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے، سراسر تو اس کے خلاف جا رہا ہے۔
मा गर्रका, किस चीज ने तुझे धोखे में डाला हुआ? दुनिया ने धोखे में डाला हुआ है, दुनिया की जीनत ने धोखे में डाला हुआ है, 20 फुट की गाड़ी ने डाला हुआ है, बंगलों ने डाला हुआ है। मेरे भाइयों, ये तमाम चीजें खत्म होने वाली। वाइन तदहबून, तुम कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? ये अल्लाह तबारक व तआला हमसे मुखातिब हो रहे हैं मेरे भाई। जरूरत इस अमर की है मेरे भाइयों कि इस रात के अंदर हम इबादत करें, इस रात को हम मुज़य्यन करें, इस रात के अंदर हम अपनी रूहानी गंदगियों को साफ करें मेरे भाई, ताकि हम पाक साफ हो जाएं, फिर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। तो अल्लाह तबारक व तआला उस इबादत के अंदर लुत्फ भी अता करता है मेरे। और खास तौर पर जो रात आती है, ईद उल फितर की रात होती है, जिसे लैलतुल जायज़ा कहा जाता है। शुअबुल ईमान के अंदर इमाम बैहक़ी लिखते हैं, सुम्मियत तिलकल लैलतुल जायज़ा, इस रात को जायज़ा रात कहा गया। जायज़ा अरबी के अंदर कहते हैं इनाम को। अल्लाह तबारक व तआला इनाम अता करते हैं। हर अफ्तारी के वक्त अल्लाह तबारक व तआला 10 लाख बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, 10 लाख बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। और पूरे रमज़ानुल मुबारक में जितने बंदों की मग़फ़िरत की होती है, लैलतुल जायज़ा के अंदर उतने और बंदों की मग़फ़िरत कर देते हैं अल्लाह तबारक व तआला। तो हमारे लिए बहाने ढूंढ रहा है, क्या हम उन मग़फ़िरत वाले बंदों में से हैं या नहीं है जिनकी मग़फ़िरत हो जाएगी? और बाज़ तो बदनसीब ऐसे हैं, बदकिस्मत ऐसे हैं कि इस रात में भी उनकी मग़फ़िरत नहीं होती, रमज़ानुल मुबारक भी गुजर जाता है, उनकी मग़फ़िरत नहीं होती। उनमें मेरे भाइयों वालिदैन का नाफरमान, जो बात बात पे वालिदैन को ताने देता है, गालियां देता है, वालिदैन को सताता है, वो वालिदैन जिन्होंने इसको नापाक हालत में भी उठाया, वो माँ जो इसके लिए पूरी पूरी रात जागा करती थी, आज वो उसे सता रहा है। ऐसे नाफरमान की मग़फ़िरत नहीं होती है। आक़ुन लिवालिदै के अल्फाज हैं, अरबी के अंदर आम नाफरमानी के लिए मासी का लफ्ज होता है, लेकिन जो वालिदैन का नाफरमान होता है उसके लिए आक़ का लफ्ज है। पता है आक़ किसे कहते हैं? आक़ कहते हैं किसी चीज के इतने टुकड़े कर दिए जाएं कि मजीद टुकड़े बनाना मुमकिन ही ना, जर्रात में किसी चीज को तब्दील करना। जो शख्स वालिदैन की नाफरमानी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको इतना जलील करता है, इतना जलील करता है कि दोबारा वो ठीक नहीं हो सकता, दुनिया और आखिरत दोनों में जलील कर देते हैं। इसकी कदर उन लोगों को पता है जिनके वालिदैन नहीं है। आज वो अपने वालिदैन को गले मिलना चाहते हैं, नहीं है वालिदैन, आज वो भी सीना लगाकर रोना चाहते हैं, उन्हें वालिद की जो नियामत है वो नहीं मिल रही है मेरे को। कितने लोग हैं कि उनकी ये ईद जो है बगैर वालिदैन के गुजर रही हो। पहली उनकी ईद होगी कि वालिद का साया नहीं होगा उनके ऊपर, पहली ईद होगी कि वालिदा का साया उनके सरों पर नहीं होगा। वो ईद के दिन कब्र के ऊपर जाएंगे, वो आवाज लगाएंगे, जवाब भी खुद देंगे, वापस आ जाएंगे। मेरे कदर करो इन वालिदैन की मेरे भाई। ये वालिदैन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गनीमत है। कोशिश करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक दो ऐलानात हैं, इंशाअल्लाह ईद उल फितर की नमाज जो है वो 7:15 पर अदा की जाएगी, 7:15 बजे अदा की जाएगी। 7:15 का मतलब यह है कि 7:15 पर नमाज खड़ी हो जाएगी, बयान इससे पहले हो जाएगा। तो कोशिश करें, जो साथी भी ख्वाहिश रखते हैं नमाज पढ़ने की यहाँ पर, वो जल्द अज जल्द तशरीफ लाएं यहाँ। इसी तरह जितने भी लोग हैं रोजे रख रहे हैं, जिसके ऊपर सदका फितर वाजिब है, वो सदका फितर अदा करें। सदका फितर जो है मुख्तलिफ अजनास में से होता है। गंदुम में 2.25 किलो, एहतियातन 2 किलो की कीमत लगाकर उसके एतबार से आप दे दें। जो 3-3.5 किलो, खजूर हो गए 3.5 किलो, इसी तरह किशमिश 3.5 किलो, इसकी कीमत लगाएं मार्केट में और वो दे दें। उमूमन जो गंदम की चल रही है आजकल 300 रुपये चल रही है। तो कोशिश करें अभी से दे दें। आप किसी गरीब को आप देंगे मेरे भाइयों, जरूरी नहीं है 300 रुपये पकड़ा दिया उसको, थोड़ा सा ज्यादा दे दें, उसकी चप्पल आ जाएगी, उसके कपड़े आ जाएंगे, थोड़े ज्यादा दे दें। अल्लाह तबारक व तआला कम नहीं करता है। इंफाक फी सबीलिल्लाह का सवाब भी आपको होगा। किसी की ईद अच्छी गुजर जाएगी, अपने बच्चे के लिए कपड़े लेने के लिए जाते हैं, साथ देखें पड़ोस में अगर कोई ऐसा बच्चा है, यतीम है या उनकी माली हालत ठीक नहीं है, एक सूट उनके लिए भी लाकर चुपके से दे दे।
میرے بھائیوں آپ بھی اتنا سکون محسوس کریں گے زندگی کے اندر، کبھی آپ نے محسوس نہیں کیا۔ کر دیکھیں، آپ آزما کر دیکھیں، کسی کو بستر مہیا کر کے اگر آپ ٹھنڈی زمین کے اوپر بھی سوئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سکون عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔